In today's video, we will be studying about the chromatography. Chromatography is an excellent separation technique. Basically, it is rather than separation technique, we would say it's an excellent identification technique. It's an identification technique. तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपको कोई मिक्सचर दिया जाए तो उस मिक्सचर के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, you can very well identify that because chromatography is a technique which work on small samples. ठीक है, ये वर्क करती है ऑन द स्मॉल सैम्पल्स और इसीलिए वो सेपरेशन नहीं बल्कि हम इसको कहते हैं इट्स एन आइडेंटिफिकेशन टेक्निक. You are able to identify which all components are present in that particular mixture or in that particular sample. Chromatography different type की होती है because in O levels you are at the ordinary level, they are just letting you know about the paper chromatography. इसके advanced level chromatography भी होती है. There's a gas liquid chromatography, there's a thin layer chromatography, but our focus is on the paper chromatography, which is the basic type of chromatography. Now, chromatography is an important technique. Let me tell you about the application of the chromatography ताकि आपको इसकी importance का अंदाजा हो कि हम chromatography क्यों पढ़ते हैं और why we should have a good understanding about it. As it is written down in the slide, I'm just reading out the application of the chromatography or the advantages of chromatography. Number one, it is used to check the purity of the substance. Always a pure substance give one spot on the separation technique. So as I told you, it's an identification technique and it's also the check for the purity. Check for the purity में आपकी तीन techniques आ जाती हैं. अगर boiling point आपका fixed boiling point substance दे रहा है तो वो आपका pure substance होता है, या अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका फिक्स है तो वो प्योर सब्सटेंस होता है. और तीसरी चेक जो होता है जिससे हम प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस चेक कर सकते हैं, प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस. समटाइम दे आस्क यू हाउ टू चेक द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस. So if you need to check the purity of the substance, then these are the three things by which we can check the purity. Number one, the melting point, the fixed melting point. Number two, the fixed boiling point. And number three is basically your chromatography. आपका जो क्रोमेटोग्राम होता है, I'll share the technique soon इंशाल्लाह. मैं पहले एप्लीकेशन बता रही थी आपको. ये आपका क्रोमेटोग्राम है. अगर क्रोमेटोग्राम if it is giving you one spot only, that means ये जो मिक्सचर की जो हमने स्पॉट यहाँ पर लगाया है इसके अंदर सिर्फ एक ही सब्सटेंस है. एक सब्सटेंस होने का मतलब है वो प्योर सब्सटेंस है. So another check for the purity, in order to check the purity of the substance, we can perform chromatography. ठीक है, so this is a very important application to check the purity of the substance, whether the substance is pure or it is a mixture. We can perform chromatography. If we just get one spot, that means the substance is pure, it's not a mixture. But if we get more than one spot, then that is going to ensure कि ये जो आपने सब्सटेंस का स्पॉट लगाया इसमें ये दो कंपोनेंट्स है, इसका मतलब वो मिक्सचर है. तो दिस इज अ चेक फॉर द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस. लाइक a melting point and boiling point, fixed melting and boiling point can confirm the purity. Number two, it is used to separate and identify poisonous food additive or a food color which are not recommended by WHO. तो हमारे जो food inspectors होते हैं, जो food inspectors जो कि sample आपका different होटल से कलेक्ट करते हैं या different samples different food stalls से कलेक्ट करते हैं या आप एक ग्रोसरी स्टोर से कलेक्ट करते हैं, तो वो दे परफॉर्म द क्रोमेटोग्राफी ओवर इट. इवन PSO जो है आपका पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है, तो ये इसके अंदर जो भी पेट्रोलियम का जो सैंपल है कि वो प्योर है या इम्प्योर है, दे ऑल्सो डू इट थ्रू द क्रोमेटोग्राफी. तो आपका प्योरिटी का चेक जो होगा वो आप क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं. तो द फूड इंस्पेक्टर्स दे टेक द सैंपल एंड दे इंश्योर कि उसके अंदर कोई नॉन रिकमेंडेड स्टफ फूड स्टफ तो नहीं है, तो उसका चेक वो क्रोमेटोग्राफी से करते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी हम अब करने जा रहे हैं इसी से हो. दे कैन देयर आर एडवांस लेवल ऑफ क्रोमेटोग्राफीज एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. There is a gas liquid chromatography and many more categories. Number three, it is used to separate and identify. हम separation technique कम इसको use करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम
बहुत ही छोटा सैंपल ऑफ द मिक्सचर या सब्सटेंस लेते हैं, तो हम इसको प्रेफर नहीं करते कि हम इसको यूज करें एज ए सेपरेशन टेक्निक. इट इज यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई इवन द कलरलेस कंपाउंड्स. वेरी इंपॉर्टेंटली, हमारा वर्ड क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेल्फ डिफाइनिंग है कि क्रोमा मीन्स कलर्स एंड ग्राफी मीन्स पिक्चर. तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हम एक डिफरेंट क्रोमेटोग्राफ पे जो डिफरेंट आपको स्पॉट्स मिलते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं. जैसे ये रेड स्पॉट मिल गया आपको, ये आपको पर्पल स्पॉट मिल गया, तो इन कलर्स के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर दो कलर्ड स्पॉट्स हैं तो इसके अंदर दो मिक्सचर्स हैं. तो जरूरी नहीं है, जैसे कि नाम आइडेंटिफाई करता है, नाम स्पेसिफाई कर रहा है chromatography, that means a study on the basis of colors. We can do it for the colorless substance as well. अब ये colorless substance हमारे पास सिलेबस में एक substance है जिसके अंदर हम प्रोटीन का सैंपल लेते हैं. प्रोटीन का अगर हम, प्रोटीन इज बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से बनता है. तो प्रोटीन का जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो उस सैंपल में आपके पास अमाइनो एसिड का मिक्सचर आएगा. तो उस मिक्सचर का जब हम यहाँ पर स्पॉट लगाते हैं, तो अमाइनो एसिड जो होते हैं दे आर बेसिकली कलरलेस. तो उनको आइडेंटिफाई करना, द कलरलेस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना इज अगेन अ चैलेंज. बट द क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से वी कैन डू इट. पहले तो हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं, अमाइनो एसिड्स अपने आप को स्प्लिट अप कर देते हैं एट द डिफरेंट लेवल्स, और जब वो अपने आप को शो अप करते हैं एट द डिफरेंट लेवल्स और हमें पता चल जाता है कि सॉल्वेंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक रन हुआ है ऊपर तक, तो हम उसको वी लेट इट ड्राई. आफ्टर लेटिंग इट ड्राई, तो फिर उसके अंदर उसके ऊपर हम लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करते हैं. और लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करने के बाद जो ये जो आपके कलरलेस स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, कलरलेस स्पॉट्स जो होते हैं ये विजिबल हो जाते हैं. तो स्पेसिफिकली फॉर द प्रोटीन्स जो लोकेटिंग एजेंट हमारे पास सिलेबस में है, दैट इज योर निनहाइड्रिन. Ninhydrin is a locating agent which actually when sprayed on the different type of amino acids, जब आपका प्रोटीन का क्रोमेटोग्राफी हो रही है तो ये आपको विजिबल स्पॉट्स अमाइनो एसिड्स के दिखाएगा, जिसको एक्सटेंसिव टेक्निक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्पॉट किस अमाइनो एसिड का है. I'm just reading it out. This is used to separate and identify even the colorless compounds like amino acids which are in the which are mixture when protein is protein. अगर आप लें और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करें तो आपको अमाइनो एसिड का मिक्सचर मिलेगा. प्रोटीन is made up of colorless amino acid. On separating, they are not visible, so in order to make them visible you spray the locating agent. And the locating agent specifically in the case of amino acid we take ninhydrin spray. Is sprayed on the chromatogram, due to which the different amino acids become visible with the different colors, which are then compared with the standard chart of amino acid, hence they are identified. So even the color substance we can identify on the basis of chromatography. The color substance को के ऊपर हम लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करते हैं. दिस इज वन टाइप ऑफ लोकेटिंग एजेंट. इसी तरह से और भी मुख्तलिफ लोकेटिंग एजेंट्स हैं जो डिफरेंट मिक्सचर टाइप ऑफ मिक्सचर के ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे. नंबर 4, दिस टेक्निक इज यूज फॉर फॉरेंसिक साइंटिस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो टेक्निक है ये फॉरेंसिक साइंटिस्ट यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मर्डर मिस्ट्री या इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी मिसहैप, accident, to investigate the crimes. Basically from the incident, what they do is they collect the sample, and the collected sample, when they perform a chromatography on it, which then compared with the sample collected from the suspect, if matching occurs, then they reach to the conclusion that who is the culprit or who has done the crime. तो ये एक बहुत important technique है employed by forensic scientists. Like for example, let me create a scenario. कहीं पर मर्डर हुआ तो वहां पर जो मर्डर जो हुआ तो उन्होंने क्या किया, उसके ब्लड सैंपल या उसका ब्लड सैंपल लिया, उस ब्लड सैंपल के अंदर उन्होंने क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म किया. दैट कैन बी अ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. और उसके अंदर उनको ट्रेसेस ऑफ सम पॉइजन नजर आया. उस पॉइजन को डिटेक्ट करते हुए दे मूव्ड ऑन फर्दर. उसके अंदर उनको एक एक ट्रेल फिर वो फॉलो करते हैं कि ये पॉइजन कहाँ से आया एंड देन who could be there and so on. कि पूरी की पूरी वो अपनी मर्डर मिस्ट्री जो भी क्राइम मिस्ट्री है उसको सॉल्व कर सकते, इनिशिएटिंग विद द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. देन द फिफ्थ पॉइंट इज इट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पॉइजनस इंसेक्टिसाइड व्हिच आर नॉट रिकमेंडेड बाय एचओ डब्ल्यूएचओ. तो जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स आप ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स दे रिमेन ऑन द क्रॉप, और अगर क्रॉप पे वो रह जाते हैं तो डेफिनेटली दे विल बी कंज्यूम्ड बाय अस इफ दे आर द वेजिटेबल्स और व्हाटएवर द क्रॉप्स दे आर नॉट प्रॉपर्ली वॉश्ड.
तो WHO ने कुछ इंसेक्टिसाइड्स को बैन करा हुआ है। तो आपके अगेन सम इंस्पेक्टर्स जो भी उस टीम के पार्ट होते हैं, वो जाते हैं और जो भी क्रॉप है उसके ऊपर उसके ट्रेसेस लेते हैं, यू दे वॉश एंड दे गेट टू नो व्हाट इंसेक्टिसाइड, और उसकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं, उसको मैच करते हैं, द वंस विच आर नॉट रिकमेंडेड, अगर वो उनके साथ मैच कर रहा होता है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली दे टेक एन एक्शन. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वी शुड बी नोइंग ऑल दिस. ठीक है, तो ये एक 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है टू गिव an advantage of chromatography. So I have stated 5 of them, so any one you can write it down. Now let's move on to exactly how are we going to perform the chromatography. So we know two things now. What is chromatography? Ka literal meaning, it's a study or it's a comparison on the basis of the colors which are shown on a chromatogram. आप उनका comparative study करते हैं, किस तरह से कलर स्प्लिट अप हुए, किस तरह से कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर स्प्लिट अप हुए, उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, आई एम गोइंग टू कवर दैट नाउ. एंड सेकेंडली हमने अभी पढ़ा कि इसकी एप्लीकेशंस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो हमें एप्लीकेशंस पता हो गई है, जिसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी पता हो गई है. Okay, now we actually come on to the actual method. How will we performing it? Actual method. तो इस actual method में हमें basically chromatogram prepare करना होता है. Chromatogram is a strip of a special kind of a paper which is very absorbent. It can be a excellent kind of filter paper. It can be your filter paper as well. ठीक है, तो हम वो strip of chromatogram लेते हैं. This is your strip of a chromatogram. ठीक है, which I'm shading over here. ये strip of a chromatogram है. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम prepare करते हैं, इस chromatogram को हम prepare करते हैं. ठीक है, हमने एक strip of chromatography paper लिया. It can be a fine quality filter paper जो कि बहुत अच्छे से liquid को absorb कर सकता है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, what do we do next is that we draw a starting line with a pencil. हम यहाँ पर starting line जो है, एक starting line draw करते हैं, और ये starting line जो है हम pencil से draw करते हैं. क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि पेंसिल से क्यों ड्रॉ करते हैं, पेन से क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ ड्रॉइंग दिस स्टार्टिंग लाइन, व्हाई डू वी ड्रॉ दिस स्टार्टिंग लाइन. स्टार्टिंग लाइन के ऊपर आप ना सैंपल का स्पॉट डालते हैं, एंड इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1 centimeter from the from it should be 1 centimeter from the surface, from the bottom of the chromatogram. तो ये हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम फाइन कैपिलरी ट्यूब या फिर एक बहुत छोटी सी ड्रॉप जो है, प्रेफर्ड यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब, अदरवाइज हम ड्रॉपर से भी ये पर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ अ मिक्सचर यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऑन द स्टार्टिंग लाइन. ठीक है, ऑन द स्टार्टिंग लाइन we add the drop of the mixture with using a dropper or using a capillary tube. We want this drop need to be very very fine, क्योंकि अगर हमें 2-3 ड्रॉप्स लगानी है तो वो आपस में ब्लेंड और मर्ज ना करें, तो इसलिए हम बहुत ही छोटी सी कैपिलरी ट्यूब के साथ वो स्पॉट डाल देते हैं. सही है. अच्छा, अब ये हमने क्रोमेटोग्राम प्रिपेयर कर लिया. अब इसके बाद व्हाट विल बी डूइंग इज दैट वी विल बी पुटिंग इट इन अ बीकर, और उस बीकर के अंदर आपके पास एक सॉल्वेंट होना चाहिए. हम वो सॉल्वेंट प्रेफरेबली लेते हैं जिसमें ये मिक्सचर जो है वो डिसॉल्व हो जाए, जिसमें मिक्सचर डिसॉल्व हो या सॉल्युबल हो. ठीक है, तो बेसिकली 99% केसेस जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वो होता है या तो वाटर, बिकॉज वाटर इज योर यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इट्स योर यूनिवर्सल सॉल्वेंट. या तो आप वाटर लेते हैं या फिर हम लेते हैं अल्कोहल्स. ठीक है, अगर हमारे पास कोई insoluble mixture, insoluble water है, तो that might be soluble in alcohol, or it might be soluble in any other organic substances like ether and so on. ठीक है, तो हम इस बेसिस पे कि हमारा मिक्सचर क्या है, उस बेसिस पे हम सॉल्वेंट डिसाइड करते हैं, और सॉल्वेंट का जो लेवल होता है वो स्टार्टिंग लाइन से नीचे होता है. ठीक है, नाउ दिस इज, अगर ये मेरा पर्पल, इफ यू कैन सी दैट पर्पल इज माय, इफ यू कैन सी द पर्पल इज माय स्टार्टिंग लाइन, पर्पल मेरी स्टार्टिंग लाइन है, और उसके ऊपर मेरा एक स्पॉट लगा हुआ है मिक्सचर का. तो अब मेरा जो सॉल्वेंट का जो लेवल होगा, जितना बीकर में मैंने लिया है, वो स्टार्टिंग लाइन से नीचे होना चाहिए, और वो जो है उस स्पॉट से नीचे होना चाहिए. स्पॉट किसी भी हालत में आपका सॉल्वेंट के अंदर टच नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इसका इसका रीजन क्या है, बिकॉज दीज आर सर्टेन प्रिकॉशंस व्हिच यू हैव टू टेक केयर. अभी जो सॉल्वेंट मैंने जो रेड में मार्क किया है,
ये हमारा क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही एब्जॉर्बेंट किस्म का फिल्टर पेपर होता है। तो जो फिल्टर पेपर है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो है सॉल्वेंट को, इसके अंदर सॉल्वेंट जो है एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पोर्स हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉल्वेंट इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। और अगर हमारा जो मिक्सचर का जो स्पॉट था अगर वो इसके अंदर डिप कर रहा होता सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट जो है वो जो मिक्सचर का जो स्पॉट है वो डिसॉल्व होके सॉल्वेंट में आ जाता है, क्योंकि मिक्सचर जो है वो सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट है। एंड वी डोंट वांट दिस, वी वांट इंस्टेड द सॉल्वेंट टू फ्लो अप, to be absorbed up onto the chromatography paper, एंड अलोंग विद दैट आपका जो मिक्सचर है, अगर मिक्सचर के अंदर लेट्स से अगर मिक्सचर के अंदर आपके पास इट्स मेड अप ऑफ 3 सब्सटेंसेस ए बी एंड सी, तो अब ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट, मिक्सचर की जो 3 कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर की जो 3 पार्ट्स हैं, इनकी इस सॉल्वेंट के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ, अगर मैं चीनी को डिसॉल्व करूँ पानी के अंदर तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। अगर मैं नमक को डिसॉल्व करूँ पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। तो हर एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। तो ये तीनों वाटर में सॉल्युबल हैं लेकिन इनका सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। जैसे NaCl एंड शुगर, ये वाटर में सॉल्युबल है लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है उसके बेसिस पर they will be absorbed, they will be traveling the different distances on the chromatogram, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ द क्रोमेटोग्राफी क्या है कि जो the components of the mixture, the components of the mixture will be separated, on the basis of their relative, means their relative solubility in the solvent, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मेरे सब्सटेंस था ए बी एंड सी, तो इनमें से जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, जो इज गोइंग टू बी मोस्ट सॉल्युबल, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब अगर मेरे पास एक ए बी सी है, जो ए जो हैगा अगर सबसे ज्यादा सॉल्युबल है तो वो सबसे ज्यादा सॉल्वेंट के साथ ऊपर तक ट्रैवल होगा, और जो मेरा लीस्ट सॉल्युबल है वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर मेरे पास एक स्पॉट ये है, ठीक है, दूसरा स्पॉट ये है और तीसरा स्पॉट ये है, तो अगर मेरे पास ए मोस्ट सॉल्युबल है, बी सी लीस्ट सॉल्युबल है और बी इन बिटवीन है, तो दिस इज गोइंग टू बी ए व्हिच इज गोइंग टू कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस, this is going to be the C which is going to cover the least distance, and this is going to be the B which is intermediate comparatively, less soluble than A and more soluble than C, तो वो in between वो अपने आप को शो अप करेगा। तो ये जो मिक्सचर की जो कंपोनेंट्स हैं ये सेपरेट आउट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल, दे ऑफन आस्क यू 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क पार्ट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी की इसके पीछे क्या प्रिंसिपल क्या है, what is the logic behind that, how the chromatography separates the components of the mixture. Is the spelling correct? Principle key. When I'm explaining, I make a lot of spelling errors there. Principle. Okay. So the principle of chromatography is, this is what you will be writing: the components of the mixture will be separated on the basis of the relative, comparative. ये इनका relative solubility तो है कि A ज्यादा soluble है तो वो move कर रहा है ज्यादा distance, B less soluble है तो वो less distance travel कर रहा है, और C सबसे कम है तो वो solvent जहां पर आपने mixture का spot लगाया था उससे हम डिस्टेंस ट्रैवल करते कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वहां से ये देखिए ये ए जो है ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दिस इज ए व्हिच इज ट्रैवलिंग द मोस्ट डिस्टेंस बिकॉज इट्स द मोस्ट सॉल्युबल, ठीक है। और सी इज बेसिकली द लीस्ट सॉल्युबल, सो इट्स covering the least distance, and B is intermediate. तो हम कह रहे हैं कि it's a technique जिसका principle है कि components of the mixture will be separated on the basis of the comparative, relative solubility in the solvent, and that is the reason they separate out on the chromatogram, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म होती है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि हम एक क्रोमेटोग्राम प्रिपेयर करते हैं which is an absorbent paper, we draw a line, the starting line with the pencil, and then we
place a drop of the mixture on the starting line and then we put it in the beaker जहाँ पर हमारे पास solvent है होगा जो भी solvent आपने decide किया है on the basis of the nature of mixture और solvent का जो level है वो आपकी starting line से much below हो otherwise क्या होगा जब आप starting line पे आप अपना mixture का spot डालेंगे तो instead of being traveling up along with the solvent वो बह के already नीचे आ जाएगा which we don't want. We want the solvent to be absorbed and as it get absorbed right जैसे से वो absorb होगा उसी हिसाब से उसके अपने components भी जो हैं वो absorb होते जाएंगे और वो show up करते जाएंगे on the chromatography paper. Now comes the precaution. ठीक है अब हम बात करते हैं precautions की. I hope this much is clear. Now let's talk about the precautions which are associated with this technique. Number one पहली precaution की जो हम बात करते हैं तो मैंने आपको precaution के अंदर प्रिकॉशन के अंदर पहली चीज जो मैंने बताई कि वो वी विल बी ड्राइंग दिस स्टार्टिंग लाइन विद द पेंसिल. व्हाई आर वी ड्राइंग दिस विद द पेंसिल? बिकॉज अगर हम इसको इंक से ड्रॉ करते हैं देन इंक इटसेल्फ इज अ मिक्सचर. ठीक है तो अब आपके पास अगर स्टार्टिंग लाइन अगर आप इंक से बना रहे हैं ये इंक से है राइट और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर इसके पास यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ये आपका मिक्सचर का स्पॉट है तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपने अलग अलग शो करेंगे और इंक जो है वो भी अपने आप को स्प्लिट अप करेगा क्योंकि इंक मिक्सचर है तो इंक के स्पॉट्स इन बिटवीन आ जाएंगे तो ये जो है आपकी क्रोमेटोग्राफी रिजल्ट्स को इफेक्ट करेगा. आपको नहीं पता चलेगा कि मिक्सचर के आप समझेंगे कि मिक्सचर के 5 के 5 स्टॉप स्पॉट्स हैं जबकि इंक भी स्प्लिट अप होके उसने भी अपने 2 स्पॉट्स यहाँ शो करे विच आर एक्चुअली हिंडरिंग योर फाइनल रिजल्ट जिसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करनी है इवेलुएट करना है अपना रिजल्ट. ठीक है सो दैट इज द रीजन वी विल बी ड्राइंग द स्टार्टिंग लाइन ओनली विद द पेंसिल. अब पॉइंट आता है कि हम स्टार्टिंग लाइन ड्रॉ ही क्यों करते हैं. रीजन क्या है क्योंकि देखिए हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं जितना भी हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करते हैं वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन. अगर हमें इसका कुछ कंपेयर करना है तो हम उसको स्टार्टिंग लाइन से कंपेयर करेंगे उसका डिस्टेंस. इसका कंपैरिजन करना है तो स्टार्टिंग लाइन से आप इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे. ठीक है तो हमें स्टार्टिंग लाइन अगर हम ना ड्रॉ करें और सिर्फ आप अपना मिक्सचर का स्पॉट डाल दें तो हमें नहीं पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर जगह पे हमने वो मिक्सचर का स्पॉट डाला है. तो वी वांट सम आइडेंटिफिकेशन कि ये हमारा यहाँ से हमें मेजर करना है अपना डिस्टेंस. तो वी नीड टू हैव अ मार्क फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट और डिस्टेंस. हमें अपना डिस्टेंस को मेजर करना है तो इसलिए हमारा पेंसिल से वो ड्रॉ करना जरूरी है. अदरवाइज आपका अगर आप सिर्फ मिक्सचर डालेंगे तो मिक्सचर अगर वो कंपोनेंट में स्प्लिट अप हो गया तो हो सकता है यहाँ पर कोई भी ट्रेस ना छोड़े आपको पता ही ना चले कि आपने मिक्सचर का स्पॉट कहाँ डाला था कहाँ से आपको डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है. व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है सो दीज आर द प्रिकॉशन. नाउ द प्रिकॉशन नंबर 2 इज दैट यू विल बी प्रिकॉशन नंबर 2 जो है ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप जो होता है दिस होल सेटअप शुड बी कवर्ड. ठीक है दिस होल सेटअप शुड बी कवर्ड. व्हाई दिस सेटअप शुड बी कवर्ड? द रीजन इज नंबर 1 एक हम क्रोमेटोग्राम यूज कर रहे हैं. क्रोमेटोग्राम जो होता है क्रोमैटोग्राम ये जो क्रोमैटोग्राम होता है जिसे मैंने आपको पहले बताया दिस इज अ फिल्टर पेपर और फिल्टर पेपर जो होता है वो हाईली हाईली उसके अंदर एब्जॉर्बेंट पेपर होता है. तो अगर आपके एटमॉस्फेयर में देयर इज लॉट ऑफ मॉइस्चर देयर तो ऑटोमेटिकली इसके पोर्स के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा जिसकी वजह से सॉल्वेंट को ऊपर ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी. दैट इज वन रीजन कि वी वांट द सेटअप टू बी कवर्ड. द अदर रीजन फॉर दिस टू बी कवर्ड इज तो हो सकता है जो आपने सॉल्वेंट डिसाइड किया हो जो सॉल्वेंट डिसाइड किया वो इवेपोरेट हो सकता है. ठीक है लेट्स से अगर हमने अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट लिया है तो इवेपोरेट हो जाएगा. अगर सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया एंड इट्स नॉट टचिंग द क्रोमैटोग्राम एज तो आप बताइए सॉल्वेंट ऊपर ट्रैवल करेगा? नहीं करेगा क्योंकि वो तो इवेपोरेट हो गया. उसका लेवल जो यहाँ होना चाहिए था जिसका लेवल यहाँ होना चाहिए था क्रोमैटोग्राम उसमें टच होना चाहिए था ताकि सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाए. लेकिन अगर वो इवेपोरेट हो गया है और वो इट्स नो मोर टचिंग द एज ऑफ द क्रोमैटोग्राम तो क्या यहाँ पर क्रोमैटोग्राफी होगी? नहीं होगी. तो वी डोंट वांट अ सॉल्वेंट टू बी इवेपोरेटेड in the cases like alcohol or ether जो कि organic solvents हैं. तो we have to make sure कि ये particular setup जो है ये close setup हो. ठीक है तो that is why we need to have a close setup. ठीक है तीसरी precaution जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ we prefer to place the spot of a mixture using the capillary tube. ठीक है using the capillary tube. Capillary tube
इज अ apparatus। ये ऐसा apparatus है, ऐसी ट्यूब होती है, एक फाइन ट्यूब होती है जिससे बहुत ही फाइन स्पॉट्स लगते हैं, बहुत। और मैं इसका रीजन आपको दे चुकी हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये केस भी मैं आपको बताती हूँ, आपको जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। कई बार हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इज, ओके, दिस इज इन ग्रीन वी हैव अ मिक्सचर। ठीक है, हमारे पास ग्रीन में मिक्सचर है। अब हमें अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फूड साइंटिस्ट हैं, जिनको देखना है कि जो फूड का जो सैंपल है विच इज अ मिक्सचर, इसके अंदर कोई आपकी अनरिकमेंडेड या कोई बैंड फूड आइटम तो नहीं है। तो उन्होंने वो बैंड फूड आइटम को पर्पल में कर दिया, लेट्स से इट्स वन एंड लेट्स से ये सेकंड है। तो अब ये मिक्सचर जो है, ये अपने स्पॉट्स को मिक्सचर जो है ये सेपरेट आउट करेगा। तो मिक्सचर अपने आप को यहाँ सेपरेट आउट करेगा, यहाँ सेपरेट आउट करेगा। आपका जो बैंड आइटम 2 है, अगर उसने यहाँ पर शो किया एक स्पॉट और यहाँ पर एक ही स्पॉट शो करा, लेट्स सपोज, ठीक है, और बैंड आइटम 1 ने अपने आप को यहाँ पर शो किया, ठीक है। तो इस तरह के हम कंपैरेटिव क्रोमेटोग्राम भी बनाते हैं। अब जब हमने कंपैरेटिव क्रोमेटोग्राम बनाया जहां पर आपने ओरिजिनल सैंपल के ओरिजिनल सैंपल के भी स्पॉट्स लगाए और आपने मिक्सचर के भी स्पॉट्स लगाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, व्हेन ओरिजिनल सैंपल और मिक्सचर के स्पॉट्स जहां पर अलाइन कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे वो कंपोनेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर इस मिक्सचर में टू है, इसमें टू बैंड सब्सटेंस है, बिकॉज इसके अंदर जो बैंड सब्सटेंस है वो उतना वो भी ट्रैवल कर रहा है सेम डिस्टेंस इन दैट पर्टिकुलर विद दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और मिक्सचर का ये वाला जो कंपोनेंट है ये भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर बैंड सब्सटेंस 2 है, ठीक है, लेकिन 1 है तो 1 नहीं है। 1 अगर होता तो यहाँ पर आपके पास एक स्पॉट आ रहा होता, ठीक है। ये तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं कि पर्टिकुलर मिक्सचर में कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं। तो हम ओरिजिनल सैंपल के भी स्पॉट्स लगाते हैं और मिक्सचर का भी लगाते हैं, और रेफरेंस के बेसिस पे, कंपैरिजन के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अंदर बैंड या जो भी आपका ओरिजिनल स्पॉट्स हैं या नहीं है, और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। अब मेरे मैं बात कर रही थी प्रिकॉशंस की, ठीक है, और मैं प्रिकॉशंस की जब बात कर रही थी तो मैं कह रही थी कि हम ड्रॉपर से, ठीक है, ड्रॉपर से मिक्सचर का स्पॉट नहीं लगाते, मिक्सचर का स्पॉट नहीं लगाते। द रीजन इज कि ड्रॉपर जो होता है वो आपको एक बड़ी सी ड्रॉप देता है, ठीक है। अब ये जो बड़ी सी ड्रॉप है, इसी तरह से आप दूसरे सब्सटेंस का भी जो सैंपल हमारा अनवांटेड सैंपल है, जो बैंड सैंपल 1 है, इसका भी जब आप ड्रॉपर से लगाएंगे तो ये भी बड़ी सी स्पॉट आएगी, ठीक है। और आप जो बैंड आइटम 1 का जो स्पॉट लगाएंगे वो भी आपकी बड़ी सी स्पॉट आएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ होगा क्या कि दी स्पॉट्स विल गेट ब्लेंडेड इनटू ईच अदर। ये स्पॉट्स जो होंगे जब आप ड्रॉपर से लगाएंगे तो ये एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएंगे, क्योंकि आपकी स्पॉट्स बड़ी बड़ी हैं। और जब ये स्पॉट्स आपस में ब्लेंड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो ये आपको कभी भी क्रोमेटोग्राफी का रिजल्ट जो होंगे वो अप्रोप्रिएट करेक्ट रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये ब्लेंड होके मिक्सचर के फॉर्म में आ गए। तो आपको इन ऑर्डर टू शो इंश्योर कि आपकी क्रोमेटोग्राफी की जो रिजल्ट्स हैं वो परफेक्ट हों, वो एक्यूरेट हों, तो हम यहाँ पे यूज इंस्टेड ऑफ ड्रॉपर वी विल बी यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब से आप जो स्पॉट्स लगाएंगे दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन स्पॉट, वो आपके बहुत ही फाइन स्पॉट्स होंगे, और वो स्पॉट्स बिल्कुल छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे जो आपके ब्लेंड एंड मर्ज नहीं होंगे। तो ये आपकी प्रिकॉशन नंबर 3, सॉरी, दिस इज योर प्रिकॉशन नंबर 3, ठीक है। So this is how we perform the chromatography, keeping in mind all the precautions. I hope I'm complete all of it. अच्छा अच्छा, चौथा जो है, चौथी प्रिकॉशन जो आप फॉलो करते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया इस क्रोमेटोग्राम पे कि ये सॉल्वेंट लाइन है। सॉल्वेंट लाइन शुड बी ऑलवेज बी बिलो द स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। इस सिनेरियो में मेरी जो स्टार्टिंग लाइन है वो ये है, तो जो सॉल्वेंट लाइन है वो सॉल्वेंट जो लेवल है वो शुड बी बिलो देन द the starting line. The reason is I want my solute, so I want my solvent to travel up and take the components along with it. Otherwise अगर यहाँ तक मैं solvent level starting line तक रखती तो जो mixture के जो spots हैं, जो original sample हैं, वो rather than rising along with the solvent वो पहले ही बहकर नीचे आ जाते, solvent में dissolve हो जाते। तो that is precaution number 4. Precaution number 5, we have to ensure कि solvent
till the top तक जाए, ऊपर तक एब्जॉर्ब हो. सो इट इज गोइंग टू बी टाइम टेकिंग एंड पेन टेकिंग प्रोसेस. तो जब आप इंश्योर करेंगे कि ऊपर तक, यहाँ तक मेरा सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा, तो आप इंश्योर करेंगे कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, दे शो आप. अगर फॉर एग्जांपल मैं सॉल्वेंट को सिर्फ यहाँ तक एब्जॉर्ब कराती हूँ, तो क्या वो ये इनके मिक्सचर के, इन कंपोनेंट्स के स्पॉट शो करेगा? नहीं करेगा. टू इंश्योर कि all the components that show up on the chromatogram, we have to make it travel up till the top of the paper. ठीक है. तो this is how we perform chromatography and these are the precautions. अच्छा, अब इसके अंदर जब हमारा स्प्लिट अप हो जाता है मिक्सचर इनटू कंपोनेंट्स, दिस इज वन वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ये एक तरीका है आइडेंटिफिकेशन का कि हम ओरिजिनल सैंपल्स को ड्रॉ उसके साथ लगाएं और उसको विद रेफरेंस, ओरिजिनल सैंपल जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कंपोनेंट्स आपके मिक्सचर के वही ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ओके, इसके अंदर बैंड सब्सटेंस 1 है. अब बैंड सब्सटेंस 1 यहाँ पर स्पॉट कर रहा है और मिक्सचर के अंदर यहाँ पर कोई स्पॉट नहीं आ रहा, इसका मतलब बैंड सब्सटेंस 1 इट्स नॉट प्रेजेंट. ठीक है. तो एक तरीके का ये होता है कि हम अपने सैंपल जो क्रोमेटोग्राम हम प्रिपेयर करें उसमें आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज प्रेजेंट है और क्या चीज नहीं है present. So this is how we identify the stuff. This is one way of doing it. And we have another way of doing it, that is by calculating the RF values. Okay, now this is another way of identifying the components which are present in the mixture, that is by calculating the RF value. Okay. Now what is the RF value and what is the formula for the RF value? It's a distance traveled by the dye or the component ऑफ द मिक्सचर. ठीक है. मिक्सचर का जो भी कंपोनेंट है उसका डिस्टेंस, राइट. और डिस्टेंस हम हमेशा ओरिजिन से ट्रैवल करते हैं. ओरिजिन बेसिकली इज योर स्टार्टिंग लाइन. हम स्टार्टिंग लाइन से जो हमने पेंसिल से ड्रॉ करी होती है, विच वी हैव ड्रॉन विद द पेंसिल, पेंसिल लाइन जो है, वहां से हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. अब ये आपके पास दिस इज योर मिक्सचर स्पॉट, राइट. अब ये आपके पास लेट्स से ये एक्स है and this is your solvent front. Solvent front is जहां तक आपने you let the solvent बी एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. जहां तक आपने सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब होने दिया है वो आपका सॉल्वेंट फ्रंट है. ठीक है. तो अब यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द डाई, जो भी डिस्टेंस आप, अगर ये मार्क नहीं, कई बार ये क्रोमेटोग्राम को मार्क देते हैं, दिस इज, यहाँ पर ये मार्किंग्स होती हैं. ठीक है. अगर आपकी क्रोमेटोग्राम के ऊपर मार्किंग नहीं है, देन यू कैन यूज अ रूलर. आप रूलर यूज करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस टैली करेंगे. कई बार ये प्रॉपर स्पॉट्स नहीं होती, ये इस तरह के मार्क्स होते हैं एलोंगेटेड. तो इस एलोंगेटेड जो डॉट है उसका सेंटर पॉइंट लेकर आप उसका मिक्सचर का उसका डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो स्टार्टिंग लाइन से मिडल ऑफ द स्पॉट is you're going to be the distance traveled by this dye or the component of this mixture divided by the distance traveled by the solvent up till the top, till the solvent front. So again, starting from the starting line or from the origin till where you have the solvent front, या जहां तक आपने solvent को absorb होने दिया. ठीक है. इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे. नाउ रिमेंबर दिस इज अ रेशियो, दिस इज अ रेशियो. तो एक चीज याद रखिए, इसका कोई यूनिट नहीं होता. यू आर नॉट गोइंग टू राइट और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट इज ऑलवेज अ ग्रेटर वैल्यू. ठीक है. तो ग्रेटर वैल्यू को, स्मॉलर वैल्यू को आप ग्रेटर वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी RF वैल्यू की जो वैल्यू है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1. ठीक है. अब ये तो तरीकेकार RF वैल्यू कैलकुलेट करने का, लेकिन RF वैल्यू अब हमें कैसे पता कि कौन सा सब्सटेंस है इस मिक्सचर में. अब होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है अमाइनो एसिड्स. ठीक है. मेरे पास प्रोटीन का एक मिक्सचर है, आई हैव अमाइनो एसिड का मिक्सचर. मेरे पास जो है वो एग प्रोटीन है. एग प्रोटीन का मैंने हाइड्रोलिसिस किया और इस एग प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने के बाद उन्होंने कहा कि इस एग प्रोटीन में कौन से अमाइनो एसिड्स हैं फाइंड आउट करो. ठीक है. मैंने इसको अमाइनो एसिड के जो एग प्रोटीन का जो मिक्सचर आया, अमाइनो एसिड्स का जो मिक्सचर आया था फ्रॉम एग प्रोटीन, उसकी यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब से डॉट लगा दी. और उसके बाद मेरे पास एक स्पॉट आ रहा है यहाँ पर एक्स आ रहा है, और दूसरा स्पॉट जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है एज वाई, और तीसरा स्पॉट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है जी. ठीक है. अब मैंने इन सब स्पॉट्स की डिफरेंट RF वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. अब RF वैल्यू किसी भी कंपोनेंट की, प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, अगर मैं यहाँ पर सॉल्वेंट दे रही हूँ वाटर,
तो उसमें इन सब की सॉलिबिलिटी डिफरेंट होगी, तो डेफिनेटली आर एफ वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर मैं यहाँ सॉल्वेंट लेती हूँ अल्कोहल, तो अब यहाँ पर एक डेटाबेस हमारे पास होता है, ठीक है, डेटाबेस जिनका ये काम है, उनके पास एक डेटाबेस होता है, एक डेटा टेबल काइंड होता है। तो उस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड एक्स, अमाइनो एसिड वाई एंड जी की वैल्यूज दी हुई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉल्वेंट वाटर है, तो सॉल्वेंट वाटर में जब भी ये आर एफ वैल्यू आएगा, तो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस या ये अमाइनो एसिड विल बी योर ग्लाइसिन। ठीक है, अगर ये आर एफ वैल्यू आ रही है कभी भी वाटर के अंदर, ठीक है, वो सब्सटेंस वाई है और सब्सटेंस वाई का नाम है एस्पेरेटिक एसिड, which is another amino acid। और अगर आर एफ वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस ये आ रही है, तो वो जी है, और वो जो है वो आपका सिस्टीन है, विच इज अनदर अमाइनो एसिड। तो इसके बेसिस पर, हम इस डेटा के बेसिस पर आर एफ वैल्यू क्रोमेटो, हमें पता है कि ये आर एफ वैल्यूज हैं वाटर सॉल्वेंट में, और ये अगर आर एफ वैल्यूज आपकी क्रोमेटोग्राम में कोई सब्सटेंस दे रहा है विद द वाटर ओनली अमाइनो एसिड, तो उनका कंपैरिजन हम करते हैं एंड वी आर एबल टू आइडेंटिफाई। आई होप आई एम क्लियर। Okay, now on the screen you can see a past paper question, and I'm reading out this past paper question for you people all. Okay, it says that the protein are natural polyamides. It's a polymer which can be hydrolyzed to form amino acid. अभी मेरी explanation में भी मैं बार बार प्रोटीन का जिक्र कर रही थी और कह रही थी कि प्रोटीन जो है उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और वो ब्रेक डाउन करते हैं, अगर प्रोटीन इज योर पॉलीमर, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा मोनोमर, and the monomer is here is amino acid. ठीक है, this is one statement they're telling you what is happening. The hydrolysis of protein form a mixture of a colorless amino acids. Describe with the aid of a label diagram how paper chromatography can be used to identify the mixture of amino acid. ठीक है, तो अब यहाँ पर it's a 4 mark question. 4 mark question के लिए आपको यहाँ पर एक तो क्रोमेटोग्राम बनाना होगा। You'll be making a chromatogram, and the chromatogram is going to be a well labeled chromatogram. Always remember, one particular diagram, one picture is better than 1,000 words। तो अब कभी भी इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्रेफर करें उसको डायग्राम बनाएं, और उन डायग्राम को वेरी वेल लेबल्ड बनाएं। ठीक है, यू लेबल देम प्रॉपर्ली। नाउ तो इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ आर एफ वैल्यू, ठीक है, या तो आप आर एफ वैल्यू के बेसिस पे आप क्रोमेटोग्राम ड्रॉ करिए और उसके अंदर पूरी पिक्चर बना। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे कि आप पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एंड डायग्राम हैज टू बी अ लेबल, देयर अगेन अगेन सेइंग एड ऑफ अ डायग्राम, लेबल डायग्राम। तो आपने अपना वेल लेबल डायग्राम बना दिया कि यहाँ तक मेरे पास सॉल्वेंट है, नीचे ये स्टार्टिंग लाइन विद पेंसिल है, ये मिक्सचर का स्पॉट है। तो मिक्सचर जो है वो यहाँ पर एक्स दे रहा है और यहाँ पर वाई दे रहा है। अगर मुझे आर एफ वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है, ये वाई नहीं, इसको जी लेबल कर, अगर मुझे आर एफ वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है, तो दिस इज अ डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन अप टिल एक्स। ठीक है, let's take it as x, and the distance traveled from the starting line up till here, let's take it as y. So we will be doing, no, it is not that way, it's x over y, it's x over y, it's the distance traveled by the solute component divided by the solvent, distance traveled by the solvent। तो x over y, तो आपके पास जो भी आर एफ वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, इसको कंपेयर करेंगे विद द ओरिजिनल आर एफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, और जहां पर भी जिसका मैच करेगा, दैट इज गोइंग टू, दिस इज हाउ यू गोइंग टू आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड। सो दीज थिंग्स यू विल राइट इन वर्ड्स, ये एक दो तीन पॉइंटर्स, बाकी आपको डायग्राम बनाना है, एंड दिस इज गोइंग टू स्कोर यू 4 marks। Acha, one more point which I missed on here was that I told you that there's certain substances which are colorless, और specifically हमारे syllabus में amino acid का जिक्र है, they are colorless। तो आप chromatography perform करेंगे, उसके बाद what are you going to do? There is a mark for spraying the locating agent। तो आप locating agent को spray करेंगे तो फिर आपको spots visible होंगे, फिर उसके बाद आप distance उसका कंपोनेंट का मेजर करेंगे और सॉल्वेंट का मेजर करेंगे, उसके बाद आरएफ। तो डोंट फॉरगेट टू स्प्रे द लोकेटिंग एजेंट, एंड देयर विल बी 1 mark फॉर दैट एज वेल। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आपके कलरलेस होते हैं, तो वो स्पॉट शो ही नहीं करेंगे।
Here's a question. Here's a question number 2. This question is from October, November 17. It's saying that lavenudolol, I don't know, very weird sa naam hai, is found in lavender plant. This is a formula. This is the substance, the structural formula over here. तो ये याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टिप, जितना सवाल खौफनाक होगा, जितने डिफिकल्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होंगे, जितना डिटेल्स खौफनाक होंगी, उतना ही सवाल आसान होगा, उसके पॉइंटर्स, उसका आंसर इजी होगा। तो किसी भी खौफनाक स्ट्रक्चर को देख के घबराना नहीं है, बल्कि ये इत्मीनान रखना है कि इसका फॉलोइंग पार्ट्स, जो फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर्स जो होंगे वो बहुत ईजी होंगे। तो ये स्ट्रक्चर बहुत बॉदरिंग है, देखकर ही लगता है कि एक बहुत ही मुश्किल सा स्ट्रक्चर है, पता नहीं कैसे सवाल हो, बट आई बिलीव हैव कंफर्म बिलीफ इन योरसेल्फ कि अब फॉलोड आंसर्स विल बी क्वेश्चन के पास होंगे, वो आसान होंगे, ठीक है, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही उसका आंसर्स बिल्डअप होंगे। नाउ लेवेंडर फ्लावर कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स. These can be extracted from the flower to give a solution of the colored compounds. Describe how to use a paper chromatography to identify these colored compounds. You may use a label diagram in your answer. अब आप क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि इसका इसका जो सोल्यूशन जो है फ्लावर का, जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका सोल्यूशन निकाला, वो कलर्ड कंपाउंड है। तो आप उसके एक्सट्रैक्ट, अब आप यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी पेपर, दोबारा क्रोमेटोग्राम बनाएंगे, स्टार्टिंग लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर एक स्पॉट दिखाएंगे, ठीक है, उस स्पॉट के ऊपर आप कहेंगे कि ये जो है मिक्सचर एक्सट्रैक्ट है, और उसके बाद यू विल बी शोइंग दैट, ओके जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ड्रॉ दैट फॉर यू पीपल। इस तरह का आप सेटअप बनाएंगे, इसके स्टार्टिंग लाइन बनाएंगे, उस पर मिक्सचर का स्पॉट लगाएंगे, सॉल्वेंट लेवल स्टार्टिंग लाइन से नीचे बनाएंगे, ये सॉल्वेंट फ्रंट होगा। ये तीनों बेसिक चीजें बना के फिर मिक्सचर के डिफरेंट कलर्स में आप उसको स्प्लिट अप करेंगे इनटू डिफरेंट कॉम्पोनेंट। अब आप आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर। या तो आप आरएफ वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंसेस आप लिख लीजिए कि ये जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है from the starting line we are going to name it as let's say x, ठीक है, और ये सॉल्वेंट की जो डिस्टेंस है इसको हम y करेंगे, तो आर एफ वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी, दैट्स x ओवर y, और उसको मैच करेंगे विद द ओरिजिनल components जिसका डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, with the RF value of this particular substance. If it matches, then that means this component, this purple component is supposed to be this color. या तो आर एफ वैल्यू के बेस पे कर लीजिए, या फिर इसी क्रोमेटोग्राम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव द कलर्स ओरिजिनल कलर्स की स्पॉट्स डाल सकते हैं, दैट कैन बी अदर वे ऑफ डूइंग इट, कि यहाँ पर एक कलर की स्पॉट लग गई है, दूसरे कलर की और तीसरे, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से ये वाला स्पॉट इतना ट्रैवल कर रहा है, और ये वाला स्पॉट समवेयर यहाँ तक आ रहा है, और ये वाला स्पॉट समवेयर यहाँ पर आ रहा है, तो सिर्फ एक स्पॉट आपका मैचिंग स्पॉट है, जो कि ये वाला स्पॉट है, ठीक है, ये वाला जो है आपका बेसिकली दिस इज अ मैचिंग स्पॉट। तो दैट मींस इस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर सिर्फ ये वाला नोन है, दिस इज वन विच इज नोन, विच यू कैन आइडेंटिफाई, दिस इज वट एवर जो भी इसका नाम है, और यहाँ पर ये दो जो है वो स्पॉट्स जो है वो अननोन है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज हाउ वी विल बी एक्सप्लेनिंग, वी विल बी आइडेंटिफाइंग, दो तरीके हैं, एक आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करके, और दूसरा आप ओरिजिनल सैंपल की स्पॉट्स लगा के और उनको आपस में कंपेयर करके। सो दिस इज हाउ यू विल बी एक्सप्लेनिंग, एंड with the aid of the diagram it's easier every time he says that it। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम को आप कवर्ड सेटअप में शो करेंगे, बिकॉज वो भी एक आपकी प्रिकॉशन है, इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि यू नो अबाउट दैट प्रिकॉशन। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर अबाउट द क्रोमेटोग्राफी।